چاہیے جی، یہ مدرسہ ہی نہیں رہے گا، یہ ITI ہب کا ہب بھی بننا چاہیے۔ تم ایک کمپیوٹر لیب کھولو، بچوں کو سکھاؤ، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم 10 یا 15 کمپیوٹر کا سیکشن لگائیں گے، پورا روم یہاں بنوائیں گے، کریں گے، لیکن اللہ نے عمر وفا نہیں کی۔ ملیہ کالج کو آپ دیکھ رہے تھے کتنی بری حالت تھی، کتا بندر بلی سب آ کے گھس جائے۔ ابھی آج جو باؤنڈری دیکھ رہے ہیں، جو پارکنگ دیکھ رہے ہیں، جو خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، جو سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، کن کی مہربانی ہے وہ سب؟ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خوشی اور غمی دونوں کا ایک حسین امتزاج ہے، جہاں خوشی ہمیں اس بات کی ہے کہ آج کے اس کرم میں ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے سنیوجک مدرسہ اصلاح المسلمین کے تمام منتظمین اور مدرسین ہیں، اور انہوں نے ان محفل کو اور اس روحانی محفل کو انہوں نے یہاں پر سجایا، تو سب سے پہلے ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ اور غمی اس بات کی ہے کہ جس شخصیت کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں وہ ہمارے درمیان روپوش ہو چکے ہیں، ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے اور اسلام بھی بتاتا ہے کہ کارہائے نمایاں جو کام بہتر کام کر کے گزر جاتا ہے، جو گزرنے والا، تو ان کا کام ہی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے شخصیت کبھی نہیں مرتی ہے، جو بڑے لوگ ہیں ان کے کام کبھی نہیں مرتے ہیں، لوگ اس کام کے نسبت سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم ملک کے قداور نیتا اور جن جن کے نیتا جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، جنہوں نے سیمانچل ہی نہیں بہار کو ایک نئی پہچان دی ہے، ان کی یاد میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، جہاں پر ان کی ملکی خدمات ہیں، سیاسی خدمات ہیں، وہاں پر ملی بھی قیادات ہیں، اور اسی ملی ادارے میں ہم اور آپ یہاں پر موجود ہیں۔ ابھی آپ اس مدرسے کی کارکردگی کو سن رہے تھے، اس مدرسے کی اقبالیت کو سن رہے تھے کہ یہاں گریجویشن سے لے کر جو ہے فاضل تک کی پڑھائی ہو رہی ہے، اور یہ فاضل تک کی منظوری جس انتظامیہ کے سربراہ اور جس انتظامیہ کے نیک نامی کے نام ثبت ہوتا ہے، وہ کمیٹی اور انتظامیہ آج یہاں پر موجود ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم لوگ یہاں پر سن رہے تھے۔ میرے دوستوں، تو آج کے اس دعائیہ نشست میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے ہمارا، کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے ہمارا اور آپ کا ذاتی سوارتھ نہیں ہے، بلکہ ہم اس شخص کی یاد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف ہمارے مسلمان کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے سونپ دی۔ ہم ان کے یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جنہوں نے کبھی ذات، دھرم، اونچ نیچ، کالا گوڑا، چھوٹا بڑا کبھی نہیں دیکھا، بلکہ ہمیشہ مانوتا اور انسانیت کی بات کی۔ اس شخص کی یاد میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور اگر ان کے اوپر ہم تذکرہ کریں آج کے زمانے میں تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہم آپ کی اولاد کی عمر کے ہیں، ہم نے ان کی تاریخ کو سنی ہے، آپ نے ان کے ساتھ اپنی جیون گزارا ہے، آپ ہم سے زیادہ ان کی شخصیت کو جانتے ہیں، ان کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پر نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں ان چیزوں پر جانا ہے کہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے کہ دنیا آنے جانے کا نام ہے۔ آج ایک تسلیم الدین صاحب گئے ہیں، کل دوسرے صاحب جائیں گے، پرسوں دوسرا جائے گا۔ ایک نظام ہے، لیکن ایک رونا رویا جاتا اور ایک کوشش کی جاتی ہے کوئی ایک تسلیم الدین بھی ہو، کوئی ایک تسلیم الدین جیسا شخص بھی ہو جو وہی درد، وہی قرآن، وہی ملک و ملت کی فکر کے لیے آگے بڑھے۔ اس چیز کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں دوستو، اور ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اس مدرسے والے کو کہ انہوں نے کسی غلط محفل کا انعقاد نہیں کیا، انہوں نے تسلیم الدین کے نام پر کوئی کھیل کود کا مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے تسلیم الدین کے نام پر کوئی ناچ گانا نہیں کیا، انہوں نے تسلیم الدین کے نام پر کوئی چندہ فراہمی نہیں کیا، انہوں نے تسلیم الدین کے نام پر آپ کے پاس کوئی رسید لے کر کے، جھنڈا لے کر کے نہیں گیا، بلکہ دین کے نام پر یہاں پر تعلیم علوم نبویہ کو، علماء کرام کو بیٹھا کر کے ان کے نام سے قرآن خوانی کا انتظام کیا۔ میرے دوستو، یہ فخر کی بات ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ ان کے ہی ذریعہ ان کو جنت میں جگہ ملے گی، ان کا مقام بلند ہوگا۔ میرے دوستو، یہ بڑا کام ہے، آج بڑا کام ہونا چاہیے۔ ہم سیمانچل گاندھی کہتے ہیں ان کو، ان کے نام سے انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، ان کے نام سے کالج ہونا چاہیے، ان کے نام سے کسی طرح کا کوئی کمپٹیشن ٹریننگ کالج ہونی چاہیے، لیکن دوستو ان سے ہمارا کوئی رجحان نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، موجودہ وقت میں ہمارا ارریہ میں ایک سے ایک زمینیں ہیں، ایک سے ایک وسائل ہیں،
यहाँ पर पार्कों का इंतज़ाम होता है, यहाँ पर बसों ट्रेनों का इंतज़ाम होता है, यहाँ पर महानंदा बेसिन का इंतज़ाम होता है, लेकिन भुला दी गई अगर कोई शख्सियत तो वो जनाब तस्लीमुद्दीन साहब, जनाब अजीमुद्दीन साहब, जनाब मोहिदुर रहमान साहब, जो यहाँ की रीढ़ की हड्डी थे, उनके नाम पर आज अररिया ज़िला में एक भी कुछ नहीं है। जो हमारी नस्ल आगे याद रखे, आज ज़रूरत उस चीज़ की मेरे दोस्त, हमें अपना हक मांगना चाहिए कि जिस शख्स ने, हमें और आपको मालूम है कि अररिया से जाने के लिए किसी गांव में, किसी देहात में, आपको अगर दिल्ली से आना होता था तो गांव जाने के लिए उससे ज़्यादा परेशानी होती थी और उससे ज़्यादा वक्त लगता था एक गांव में जाने के लिए। लेकिन आज जो गांव में सड़कों की जाल बिछा दी है, किसकी मेहरबानी है? हमसे तो बेहतर आप जानते हैं। 2011 से पहले जिस गांव में कभी वहां के बाशिंदा ने एक लाइट की बिजली तक नहीं देखा था, आज घर घर में, झुग्गी झुग्गी में, बल्कि जलावन के घर में भी बल्ब और बत्ती जल रही है। तो किसका देन है मेरे दोस्तों? इन्हीं रहनुमाओं की देन है, इन्हीं लोगों की कुर्बानी है जिसके तबाह हम लोग, आप लोग जमा हुए हैं। लेकिन अफसोस है, हम हर महफिल में बोलते हैं कि ये सीमांचल जहां मर्दूमखोर है, जहां अच्छी अच्छी शख्सियतों को जन्म दिया गया है, चाहे वो सियासी फील्ड में हो या एजुकेशन के फील्ड में हो, लेकिन वहीं पर हम लोग अपनी तारीख को भी बुला देते हैं मेरे दोस्तों। आज आप मुल्क मत जाइए, आज अपना ब्लॉक, अपने ज़िले ही में रहिए। आपके हालात क्या हैं? आप किस किस तरह की परेशानियों से दो चार हैं? अगर आपके साथ में एक छोटी सी बात हो जाती है तो एक ISI से नहीं, बल्कि एक छोटा सा हवलदार से भी आप कितना परेशान रहते हैं, आप खुद मुहासबा कीजिए। एक स्कूल में आप एक BODO छोड़िए, एक BRP, एक छोटा सा भी ऑफिसर चले जाता है तो आप कितने परेशान हैं मेरे दोस्तों। बहुत गहरी बात मैं कर रहा हूँ। आज कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बोलने वाला है तो उसको फिक्र है कि मेरी कुर्सी चली जाएगी, उसको डर है कि कल मेरी जगह हट जाएगी, वो बोल नहीं सकता है। तो ऐसे शख्स की जरूरत थी जिस शख्स ने हमेशा बात की है। अभी आप तारीख सुन रहे थे तस्लीमुद्दीन साहब का, सरपंच से लेकर के गृह मंत्री तक गए, इतना बड़ा मकाम मिला। आपने देखा उस शेर का तारीख, आपने सुना होगा कि जिस जमाने में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उन्होंने जैसे गृह मंत्रालय मिला तो उन्होंने फाइल को तलब किया था। आज है किसी में वो दम? आज है जो हुकूमत से कोई आंख से आंख मिलाकर बात करे? उन्होंने हक और हुकूक के लिए, अपने सीमांचल के लिए, अपने ज़िला के लिए, सिर्फ अररिया ही ज़िला नहीं, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, तमाम ज़िला के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। तारीख शाहिद है। यहाँ पर सभी पुराने हजरात बैठे हुए हैं, हमारे MP साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ हारून चाचा बैठे हुए हैं। ये लोग हालात को जान रहे हैं, इन लोगों ने देखा है, नज़रों से परखा है कि किस तरह पैदल पैदल चल करके उन्होंने करिया करिया गाँव जाकर लोगों की खिदमत की है, लोगों को पूछा है मेरे दोस्तों। और इन गुनहगार आंखों ने भी देखा है कि किस तरह लोगों की मदद की है मेरे दोस्तों। इंतकाल से चंद दिन पहले हमारे मदरसा इस्लामिया यतीम खाना आए, उनको मालूम हुआ कि कुछ हैं, तो हम लोग बैठे हुए तो आ गए अचानक। उनकी एक फ़िक्र देखिए। आने के बाद पूरे घूमे फिरे, उसके बोले नहीं एक यहाँ पर कंप्यूटर लैब होना चाहिए जी, ये मदरसा ही नहीं रहेगा, ये ITI हब का हब भी बनना चाहिए, तुम एक कंप्यूटर लैब खोलो, बच्चों को सिखाओ। और उन्होंने हमसे वादा किया कि इंशाअल्लाह हम 10 या 15 कंप्यूटर का सेक्शन लगाएंगे, पूरा रूम यहाँ बनवाएंगे, करेंगे। लेकिन अल्लाह ने उम्र वफा नहीं की उनके साथ में मेरे दोस्तों। ये फिक्र थी उसमें। मिलिया कॉलेज को आप देख रहे थे, कितनी बुरी हालत थी, कुत्ता बंदर बिल्ली सब आके घुस जाए। अभी आज जो बाउंड्री देख रहे हैं, जो पार्किंग देख रहे हैं, जो खूबसूरती देख रहे हैं, जो सजावट देख रहे हैं, किनकी मेहरबानी है? वो सब बताने की चीज़ है मेरे दोस्तों, लोग बताते नहीं, और अगर बताते हैं तो हम जानते नहीं हैं। इसी जो कि मदरसे को अल्लाह ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। आज ये मदरसा किस निहज पर चला गया, आज ये मदरसा किस तरह डेवलप कर रहा है, आज ये मदरसा किस तरह तरक्की के मनाजिल को तय कर रहा है, किस तरह के अच्छे मुदर्रिसीन आ रहे हैं, अच्छे मुंतज़मीन हैं, इखलास के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। जब तक इंतज़ामिया के अंदर में खुलूस नहीं होगा उस वक्त तक ये काम नहीं हो सकता है। तो लेकिन अब चूँकि वो तारीख़ थी, उस तारीख़ को हम बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन एक तारीख़ रकम करके मौजूदा दौर में दिखाना है, वो इंशाअल्लाह हम लोग अपनी समझदारी से करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए। अभी मौलाना तलहा साहब ने खूब एकदम वाज़े अल्फाज में कह दिया, हमारे ज़ुबान पे तो मजबूरी है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि जब एक तस्लीमुद्दीन हमारे दरमियान से रूपोश हो गए हैं तो इंशाअल्लाह हम दूसरे को जन्म लेंगे और जन्म देते रहेंगे। और ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है मेरे दोस्तों, अपने पुरखों को याद कीजिए। सिर्फ जन्म तारीख पर, यौम विलादत पर ही नहीं, बल्कि हर रोज़ कम से कम हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ के उनके नाम से अल्लाह के यहाँ ईसाले सवाब के लिए भेजिए कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करें। एक मरतबा फिर हम लोग दुरूद
दरूद पढ़ें उनके नाम पर और उनको ईसाले मग़फ़िरत के लिए हम लोग भेजें। एक मरतबा दरूद पढ़ लें कम से कम एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, बहुत संजीदगी का वक्त है। अभी कोई तकरीर का, कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस करने का या कोई बड़ा इज्तिमा करने का या 10 आदमी के बीच में कोई बहुत हू हल्ला करने का वक्त नहीं है मेरे दोस्तों। अभी हाथ से हाथ पकड़ के लोगों को समझाने का वक्त है। अभी लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है दोस्तों। बहुत ख़राब तारीख आ रही है। आप अंदलुस स्पेन को अगर पढ़े होंगे, अगर आप जंग आज़ादी से पहले हिंदुस्तान की हालात को पढ़े होंगे तो उससे बदतर दौर आने वाला है मेरे दोस्तों। अभी बहुत ही ज़्यादा सोच समझ की ज़रूरत है। हमको अपनी ज़ाती इनात की ज़रूरत नहीं है कि हमको मौलाना से बहुत तकलीफ़ है या हमको फलां साहब से बहुत तकलीफ़ है। मेरे दोस्तों, इन चीज़ों को भुलाइए। अगर मुल्क में तरक्की चाहते हैं, मिल्लत में तरक्की चाहते हैं, जमहूरियत और सेकुलरिज्म को बरकरार रखना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को आपस में भाइयों में भुलाइए, एक दूसरों में तश्कील कीजिए। जब तक हम मिजाज नहीं होंगे, हम आंग नहीं होंगे, हम मिजाज नहीं बनेंगे तो हमारा पैगाम नहीं पहुंच सकता है मेरे दोस्तों। इंशाअल्लाह जिस तरह हम लोग जमात में, जमीयत में या दूसरी सरगर्मियों में या दूसरे सभाओं में हम एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिंग करते हैं, एक दूसरे से राब्ता रखते हैं, तो इंशाअल्लाह आज से ही हम लोग इस मिशन को शुरू कर देंगे। एक दूसरे से हम लोग मिलजुल करके अपनी बात को रखेंगे, समझाएंगे। अगर किसी तरह की कोई कमी है, अगर ज़्यादती है, अगर कोई गम है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सभी लोग समझदार हैं, अपनी बात को समझ गए होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इन्होंने जिन बातों की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई है, यकीनन वो बात दिल में लेने और हम सबको अज़्म हौसला के साथ यहाँ से उठ करके मैदान में काम करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम सब करेंगे मिलजुल करके। मैं इनके बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।